Assalamualaikum students. How are you all? I hope you all are fine and safe. I am your English teacher from Metropolitan Foundation School. First of all, I heartily congratulate you to promoted in the new classes. Congratulations all. Now you are in 5 class. अब आप सब 5 क्लास में आ गए हैं, इसके लिए आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद. And students, now online classes has been started. Students, because you are very well aware to the prevalent situation created due to COVID, which all of us are facing, it was our earnest desire to follow the normal procedure of attending the classes in the school. But unfortunately, unformable condition did not allow to materialize the program. We adopt the source of online classes to keep the students in touch with their studies without break. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड सिचुएशन की वजह से हम दोबारा ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आ गए हैं ताकि हम विदाउट ब्रेक जो है वो काम जारी रख सकें, आपका काम जारी रहे. आई होप आप सबने बुक पैक ले लिया होगा, सबके पास न्यू बुक्स आ गई होंगी और आप सबको अपनी न्यू बुक्स बहुत पसंद आई होंगी. तो अब हम अपनी न्यू बुक्स से काम शुरू करेंगे. हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो कीप वॉचिंग एंड कंप्लीट योर वर्क. एंड स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस क्लास इज फॉर 5. ये 5 क्लास की ग्रामर क्लास है. फ्रॉम योर न्यू बुक The Grammar Tree, Basic English Grammar and Composition, 2nd edition. ये बुक आप सबके पास होगी. So, first of all, I will tell you about this edition. The series has been revised in the light of user feedback, and this has necessitated the introduction of some new topics. Exercises have been extensively revised and new comprehension passages have been added at all levels. An attempt has been made to arrange the chapters as far as possible in such a manner that similar or interrelated topics follow one another. The units have been broken down into smaller and more manageable ones. Explanations are followed by examples and exercises to ensure that fundamental concepts are understood and assimilated before a new or related topics is introduced. Care has been taken to draw the attention of learners to expectations, exceptions to rules, correct usage and common errors. Formative assessment and end of year tests have been added to assess learners' understanding of concepts throughout the school year, inshallah. Now students, our first topic is, first of all, in your copy, you make a tidy title page of month of August.
As you all know, month of August has been started. So first of all, make a title page month of August. आप सबसे पहले month of August का title बनाएंगे अपनी कॉपी पे. Then start your topic. Our first topic in this class is simple present. Simple present. It's our tenses. Simple present tense में आपको इस वीडियो में आज एक्सप्लेन करूँगी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है. इन टेंसेस के ज़रिए हम किसी भी जुमले की पहचान करते हैं कि ये जुमला कैसा है, किससे रिलेट करता है, क्या कहना चाहता है और इसके हम ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं. तो हम अपने टेंस स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से. सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे पहले आपने मंथ ऑफ अगस्त का टाइटल बनाना है. देन सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप टाइटल बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट. ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस का टाइटल बनाएंगे आप. देन स्टार्ट योर टॉपिक. अच्छा, अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने जैसे कहा कि किसी भी जुमले की पहचान के लिए उसके टेंस से पता लगता है कि वो कौन सा टेंस है. तो सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं. आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि सिंपल सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा है. तो इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि इसमें ता है, ती है, ते हैं आता है. क्या आता है? ता है, ती हैं, ते हैं आता है. लाइक मैं खाना खा, वो स्कूल जाती है, वो खाना खाता है, या हम स्कूल जाते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम बाज़ार जाते हैं, व्हाटएवर. इस तरह के ता है, ती है, ते है जिसमें आएगा वो सेंटेंस कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस. कोई भी ऐसा जुमला जिसमें ता है, ती है, ते हैं आएगा वो कौन सा सेंटेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप कोई सा भी जुमला बोलिए जिसमें आखिर में आए ता है, ती है, ते हैं. ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस घर में करनी है. सबसे पहले आप सेंटेंसेस जो है वो आइडेंटिफाई कीजिए कि ये सेंटेंस सिंपल है या नहीं. सिंपल को लास्ट में मैंने आपको बताया कि उसके लास्ट में आएगा ता है, ती है और ते हैं. अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, इसका किस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब एक सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस उसमें कुछ भी नेगेटिव या इंटरोगेटिव नहीं होगा. सिंपल सेंटेंस है. लाइक वो स्कूल जाता है, ता है, वो स्कूल जाता है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है. तो सिंपल सेंटेंस को सबसे पहले हम बनाने के लिए एफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है. इस सेंटेंस को क्या कहा जाता है? एफर्मेटिव सेंटेंस. एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ता है, ती है, ते हैं यूज़ हुआ है. तो सबसे पहले उसमें हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यूज़ करेंगे. देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब यूज़ करना आता है ना आपको, लाइक गो एंड गोन. ये जो वर्ब्स फॉर्म्स ऑफ वर्ब हम याद करते हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. एस और एस का इजाफा करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ. एंड देन ऑब्जेक्ट. सिंपल. देन ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे. अच्छा, अब एक सेंटेंस हम बनाते हैं. लाइक अब हम इसमें एक सिंपल सेंटेंस यूज़ करते हैं. लाइक अयान स्कूल जाता है. अयान स्कूल जाता है. अयान गोस टू स्कूल. अयान क्या है? सब्जेक्ट. हमने अभी यहाँ पढ़ा. सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट. क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट. हमने इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ किया. सब्जेक्ट क्या है?
आयान, आयान सब्जेक्ट है। देन वी यूज़ वर्ब, वर्ब क्या है? काम, यानी लाइक गो। गो जो है वो वर्ब है। इसमें हमने गो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना ये गो, फिर उसके बाद वेंट गोन आता है, तो वो वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है इसमें, इसलिए हमने गो यूज़ किया, गो। देन हम इसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके साथ हम यूज़ करेंगे एस या ई एस, तो हमने गो के साथ ई एस लगाया क्योंकि गोज, अली गोज। ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, अली गोज टू स्कूल। इट्स आर सिंपल सेंटेंस, इट्स आर सिंपल सेंटेंस। अच्छा, अब आपको समझ में आ गई होगी कि इसका स्ट्रक्चर क्या है अफर्मेटिव बनाने के लिए। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव मतलब नेगेटिव बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे आयान, लाइक अगर हम यूज़ करते हैं नेगेटिव के लिए तो हम उसमें सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, डू नॉट, डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? अब आप बताएंगे मुझे किस तरह करेंगे। अब इसी तरह जब हम इसमें ऐड कर लेते हैं अयान स्कूल, यहाँ लिखते हैं हम नहीं जाता है, तो ये नेगेटिव हो गया ना, मतलब वो सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर दिया। तो अयान स्कूल नहीं जाता है, हम उसको लिखेंगे अयान गोस नॉट टू स्कूल। अयान डू नॉट गोस टू स्कूल। जब हम इसमें डू और डज यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम क्या लिखेंगे? अयान डू नॉट गो टू स्कूल। जब हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हम इसका एस या ई एस जो है वो जो इसमें हमने ऐड किया था वो नहीं करते। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम इसको चेंज कर देते हैं, तो हम लिखेंगे अयान डू नॉट डज नॉट गो टू स्कूल। अयान does not go to school। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ कर रहे हैं हम इसमें, लेकिन हम इसमें अब एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, तो गो टू स्कूल। इज इट क्लियर? देन इंटरोगेटिव बनाने के लिए, इंटरोगेटिव क्या होता है? मतलब क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि डू और डज जो हमने इसमें यूज़ किया था, डू और डज हम इसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ कर लेते हैं। लाइक अयान, क्या अयान स्कूल जाएगा? तो डज अयान गो टू स्कूल, तो डज स्टार्टिंग में आ गया, तो वो हमारा क्वेश्चन मार्क बन गया। अच्छा, इस वक्त मैं आपको सिंपल बना रही हूँ, सिंपल सेंटेंसेस बता रही हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ एक सेंटेंस आपको लिख के दिखाया है। जब मैं आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव बताऊँगी तो मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन कर दूँगी। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको इन तीनों चीज़ों को क्लियर कर दिया कि स्ट्रक्चर जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव में सिंपल सेंटेंस होता है, नेगेटिव में हम उसमें नहीं ऐड कर देते हैं, और इंटरोगेटिव में हम क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इस वक्त हम सिर्फ सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, सिंपल सेंटेंसेस में आपको जैसे मैंने बताया कि सिंपल में हम सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। इससे हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, नेगेटिव और इंटरोगेटिव का मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर कर दूंगी। ये सिर्फ सिंपल, हमने आज सिंपल प्रेजेंट टेंस करना है। सिंपल प्रेजेंट बनाने के लिए बहुत ईजी फॉर्मूला है ये कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, देन ऑब्जेक्ट। ओके, सिंपल सेंटेंस को आप बहुत आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको मैं इसकी ट्रांसलेशन करवा रही हूँ। ये ट्रांसलेशन आपने अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया आप टाइटल बनाएंगे मंथ ऑफ अगस्त का,
देन आप टाइटल बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट का, और फिर ये सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस जो है वो आप उसमें राइट डाउन करेंगे इन अ वेरी गुड राइटिंग। स्टूडेंट्स, इन अ वेरी गुड राइटिंग। इट्स योर फर्स्ट वर्क, सो कीप योर राइटिंग क्लीन। ओके, अपनी राइटिंग को साफ रखिएगा, नीट लिखिएगा और पेजेस नंबर मेंशन कर लीजिएगा। अच्छा, फर्स्ट सेंटेंस इज अली स्कूल जाता है। अली स्कूल जाता है। इट्स सिंपल। अली क्या है? सब्जेक्ट, तो हमने अली लिखा। उसके बाद हमने क्या यूज़ करना था? फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाने की, गो। गो इज अ फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा करा। अगर हम सिर्फ एस लिखेंगे तो ये कोई वर्ड नहीं बनता, जी ओ एस, ये कोई वर्ड नहीं होता, तो इसलिए हम ई एस का इजाफा करेंगे, जी ओ ई एस, गोज टू स्कूल। अली गोज टू स्कूल। अली गोज टू स्कूल। अली स्कूल जाता है। ताहे आया तो हमें पता लग गया ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और एस या इसका इजाफा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अच्छा, अब हम सेकंड सेंटेंस करते हैं। हम रोज़ बाग में खेलते हैं। अब ये भी आ गया ना, ते हैं। अभी हमने प्रैक्टिस की थी ना जिसमें ता है, ती है, ते हैं आता है। अब इसमें भी आ गया ते हैं, तो ये भी कौन सा सेंटेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम रोज बाग में खेलते हैं। वी, हम कौन है? सब्जेक्ट। यस, इट्स सब्जेक्ट वी। प्ले क्या है? प्ले क्या है? वर्ब। यस, प्ले। इसमें हम एस का इजाफा क्यों नहीं कर रहे हैं? हम रोज बाग में खेलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करिए, वी प्ले डेली इन द गार्डन। क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल यूज कर रहे हैं हम, सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर के साथ हम एस या इसका इजाफा करते हैं, प्लूरल के साथ हम एस या इसका इजाफा नहीं करेंगे सिंपल सेंटेंसेस में। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर के साथ जो है वो एस या इसका इजाफा करते हैं और प्लूरल के साथ नहीं करते। वी मतलब हम प्लूरल हैं, ज़्यादा तादाद में है, तो इसलिए हम एस या इसका इजाफा नहीं करेंगे। वी प्ले डेली इन द गार्डन। ओके, ये सिंपल बन जाएगा, वी प्ले डेली इन द गार्डन। अच्छा, अब्बू ऑफिस जाते हैं। अब्बू ऑफिस जाते हैं। अब इसमें भी देखिए ते हैं आ गया, लेकिन इसमें अब्बू इज अ सिंगुलर पर्सन। सिंगुलर है ना, अब्बू तो एक है ना। जब हम की बात हो रही तो हम में तो बहुत सारे लोग थे। अब अब्बू इज अ सिंगुलर पर्सन। अब्बू ऑफिस जाते हैं। सो फादर, फादर इज अ सब्जेक्ट, फादर गो, गो इज ऑल्सो अ वर्ब एंड वी एड एस या ई एस। Father goes to the office. Father goes to the office. सिंगुलर पर्सन के साथ हमने एस या एस का इजाफा किया, प्लूरल के साथ हमने एस या एस का इजाफा फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं किया। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वो रोज क्रिकेट खेलता है। ताहे आ गया। ताहे मतलब सिंपल सेंटेंस। हमने पहचान कर ली, इसकी आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सिंपल सेंटेंस है, वो रोज क्रिकेट खेलता है। So we translate it he is a singular person, वो अकेला है, तो इसलिए इसके हम फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा करेंगे। he plays cricket daily. he plays cricket daily. he plays cricket daily. वो रोज क्रिकेट खेलता है। he plays cricket daily. and the last sentence is वो हमेशा सच बोलती हैं। ताहे, ती है, ते हैं। अब ये ती हैं वो हमेशा सच बोलती हैं, ये भी सिंगुलर नहीं है, प्लूरल पर्सन है। सो शी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। शी, वो सॉरी, ये सिंगुलर पर्सन है, वो हमेशा सच बोलती हैं, तो सिंगुलर पर्सन है, इसलिए हमने यूज़ किया शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। एस या इसका इजाफा किया क्योंकि ये
ती हैं, यानी ज़्यादा तादाद में हैं, ज़्यादा तादाद में बात हो रही है, ती हैं। अगर आता ती है तो होता सिंगुलर। अब ये है ती हैं। आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज। ती हैं तो ती है में ज़्यादा पर्सन मतलब ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा किया। स्पीक्स, स्पीक्स द ट्रुथ, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। इट्स आवर सेंटेंसेस। डू यू कॉपी इन अ वेरी गुड राइटिंग। Thanks for watching. Stay safe, stay blessed. Allah Hafiz.